Hello, everyone, and welcome to today's podcast. My name is Deepa, and today we'll be discussing about a very important health issue, which is cholesterol, a silent killer, and also why it is so important to early investigate cholesterol among young adults in India. We will also be discussing about dyslipidemia, what exactly it is, and the risks associated with high cholesterol. And to talk about this issue, we have with us Dr. Hamad Momin, who is a cardiologist practicing at Thange Hospital, Bhiwandi. So, Doctor, welcome to our podcast. Thanks, Deepa. It's a pleasure to be here on your podcast related to dyslipidemia. Thanks for the nice intro of mine. And Just let me add that apart from this, we have started the first cath lab in the heart of Bhiwandi, which is called as HSM and Dange Cath Lab. And yesterday only we have completed uh, 2 years, and there was a second anniversary yesterday only. हाँ सर, आपको क्यों लगता है कि यंग अडल्ट्स को कंसर्न रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल को लेकर? सी कैसा है कि द इंसिडेंस जो है और प्रिवलेंस जो है हार्ट डिजीजेस का वो इंडिया में बढ़ते जा रहा है. इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड कि हार्ट डिजीजेस वर कंसिडर्ड फॉर अ वेस्टर्न पॉपुलेशन, बट देयर इज अ डायनामिक शिफ्ट कि नाउ इट इज मोर कॉमन इन एशियन पॉपुलेशन एंड स्पेशली इंडियंस. So what we have seen ki in last 5 years or so, ki almost 25% of deaths are related to heart diseases, and especially among young, 1 in 4 under the age of 40 dies because of heart diseases, especially related to high cholesterol levels. So it is a alarming time for us, and we should be aware related to cholesterol related issues. So, doctor, next I want to know that what are the major factors that contribute to the rise in cholesterol level among young adults in India? See, first of all, there is a dietary changes. As Indians now they have shifted that diet to a low fruits intake, low green intake, and we are these today's youth are more accommodated with processed foods, oily foods, and a less intake of, as I already mentioned, like greens and vegetables and fruits. Apart from that, sedentary lifestyle. Now everyone has a vehicle. पहले इंडिया में क्या होता था कि ज़्यादातर व्हीकल्स इतने नहीं थे, लोग ज़्यादातर कहीं भी जाते थे तो चल के जाते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेते थे तो अगर उनको ट्रेन भी पकड़ना है तो प्लेटफॉर्म तक जाना है तो दे हैव टू वॉक. बस के लिए भी जाना है तो दे हैव टू वॉक. बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन द लाइफ हैज बिकम सीडेंट्री. लोग रिलेटिव से भी मिलने नहीं जाते हैं, फोन पे ही बातें हो जाती हैं, दोस्तों से भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फोन पे बातें हो जाती है. तो लाइफ हैज बिकम सेडेंट्री इन इंडियन सबसेट. Apart from that, there are certain genetic factors among Indians which is also responsible for high cholesterol levels. So these are mainly the things which has contributed to increased cholesterol level, especially among Indians in nowadays. Okay, doctor. Next, I want to know that what are the major risks that are associated with high cholesterol, and क्या cholesterol long-term health को भी impact करता है? See, what does cholesterol do? There are certain good cholesterol and certain bad cholesterol. So bad cholesterol, the most important one is LDL, जिसे हम low density lipoprotein भी कहते हैं. What it does when it increases beyond a certain level, so it starts accumulating in the blood vessels. वो जाके नसों में जमा होने लगता है. तो पहले वो छोटा सा प्लाक बनता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो प्लाक बढ़ते जाता है. वो इतना बढ़ जाता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को, सप्लाई को कम कर देता है और कभी कभी तो पूरा भी बंद कर देता है. एंड समटाइम देयर आर वल्नरेबल प्लाक की जब वो प्लाक रप्चर होता है तो उसमें क्लॉट बन के सडन हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं. तो इसे हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं, या लेमन टर्म में हमें इसे ब्लॉकेजेस भी कहते हैं. तो इस ब्लॉकेजेस या इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से ही हमें, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम हार्ट डिजीज बोलते हैं, या स्ट्रोक हो सकता है, या पैरों की नसें जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती हैं वो होती हैं.
सो इसके लिए these are the mainly diseases related to high cholesterol levels. Okay. और डॉक्टर हम अडल्ट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जान सके? देखिए, एडल्ट को अगर हेल्प करना है तो सबसे पहले तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे बॉडी में। तो आजकल मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू और इसके थ्रू अवेयरनेस तो है। तो सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द न्यूअर ACC गाइडलाइंस ऑफ 2026 सजेस्ट कि कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग शुड बी एज अर्ली एट द एज ऑफ 18। अर्ली डिटेक्शन के बाद इफ देर आर एनी changes in the report, or if the cholesterol report comes abnormal, then there are certain different treatment options. The first is the lifestyle modification, dietary changes. Consult your physician. If they are beyond the certain level, they will advise you certain medications, which we have to strongly follow that. So, early detection of cholesterol, then lifestyle modification, dietary changes, and medicines if required. So doctor, as we know that financially CIBIL score बहुत ही ज़्यादा important होता है. So accordingly, in health wise, CIBIL score is also important. So what exactly is CIBIL score? सिबिल स्कोर जो हमें हमारे फाइनेंस के बारे में बताता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है या हमारे फाइनेंसेस क्लियर है कि नहीं है। वैसे ही सिबिल स्कोर इज जो है कि कोलेस्ट्रॉल इन्वेस्टिगेशन इन दिल, जो हम अभी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, उसका क्रक्स वही है कि हमें अर्ली कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना है। तो दैट इज द थिंग, कोलेस्ट्रॉल इन्वेस्टिगेशन इन दिल। सो वो हमें बताएगा कि हमारी कार्डियक हेल्थ कैसी है, हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी है। तो वही वो डिनोट करता है कि इफ सिडिल स्कोर इज गुड, इफ द कोलेस्ट्रॉल इन्वेस्टिगेशन इन दिल कम्स गुड, योर कार्डियक हेल्थ इज गुड। Like CIBIL tells you about your finances, CIBIL tells you about your heart and other body functions. Okay. And doctor, how can we get our cholesterol investigation done, and how can we find our CIBIL score? See, it is very simple. There are different labs available, so you can go and do your routine check over there. And once you go, you have to ask for a complete lipid profile. इट इज नॉट दैट कि जस्ट एक टोटल कोलेस्ट्रॉल। समटाइम्स क्या होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा के लाओ, तो वो सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करा के आते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी डिफरेंट उसके सब ग्रुप्स हैं जो टोटल जो डिवाइड होते हैं। LDL है, HDL है, VLDL है। तो ऑलवेज आस्क फॉर अ कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, सो यू कैन गो डायरेक्टली एंड चेक wherever it is available, or you can consult your physician and he will guide you or she will guide you regarding your investigation. And doctor, kindly let us know what is the ideal CIBIL score? Ideal CIBIL score, that your cholesterol number should be in control. Like the total cholesterol जो है, it should be less than 200. LDL should be less than 100 milligram per deciliter. फिर जो good cholesterol है, HDL, it should be more than 40, or better even if it is more than 50. Then there is a triglyceride, it should be less than 150. So this is an ideal CIBIL score to have a healthy heart. And this CIBIL score changes. Suppose if the patient की angioplasty हुई है, तो उनका LDL level should be as low below 55 as per ACC guidelines, and as per Lipid Association of India, it can be as low as 30. So this CIBIL score changes as per the adult or as per the patient. अगर एक healthy adult है तो जैसा मैंने बताया LDL should be less than 100. बट अगर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या पुराने कार्डियक इश्यूज है तो इट कैन बी एज लो एज 30. सो इट डिफर्स. So doctor, now tell us, what is dyslipidemia? See what when there is a normal cholesterol level, so we say it is a normal. When there is a abnormal cholesterol level, whether जब बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है जैसे LDL ज्यादा है या गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, HDL लेवल कम है, इसी को हम dyslipidemia बोलते हैं. That is a abnormal cholesterol level. At the rise in bad cholesterol or decrease in good cholesterol, that is a dyslipidemia. डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, फिर भी उसको हार्ट डिजीज होता है,
तो मतलब कोलेस्ट्रॉल के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है? देखिए, जो हार्ट डिजीजेज हैं ये मल्टी फैक्टोरियल हैं। एक पर्टिकुलर रीजन से हो जाती है ऐसे नहीं है, उसकी मल्टी इटियोलॉजी डिजीज होती है, वो मल्टीपल इटियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि मेल्स में वो ज़्यादा कॉमन होता है, तो मेल को फीमेल में हम शिफ्ट नहीं कर सकते, या ओल्ड एज है, एज को हम कम नहीं कर सकते, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो यही जो मैंने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए कोलेस्ट्रॉल के अलावा, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, यही सारी चीज़ें हैं जो हार्ट डिजीजेस को लीड मतलब करा सकती हैं, ब्लॉकेजेस को बढ़ा सकती हैं या इनिशिएट कर सकती हैं कोलेस्ट्रॉल के अलावा। And doctor, what major food habits people should inculcate in their day-to-day life? सबसे पहले तो टाइमिंग है, कि जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टाइमिंग ऑफ टेकिंग फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम क्या करते हैं कि डिनर जो हम करते हैं वो हैवी कर लेते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। तो जब हम सोए हुए हैं तो उतना एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो हमें ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए, उससे लाइटर लंच होना चाहिए और उससे लाइटर डिनर होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को पूरा स्किप कर देते हैं, लंच हम कहीं ऑफिस में है कुछ भी स्नैक्स ले लेते हैं और फिर डिनर आके हैवी करते हैं। जो जो हमें करना है हम उसका उल्टा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारा टाइमिंग जो है फूड का और क्वांटिफिकेशन है उसको चेंज करना है, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा हमें क्या क्या लेना है, तो मोस्टली हमें रेड मीट अवॉइड करना है। रेड मीट्स में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमें जो चीज़ी और क्रीमी जो फूड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसका इंटेक लिमिटेड रखना है। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, ग्रीन्स हैं, उसका इंटेक हमें बढ़ाना है। हमें सॉल्ट का इंटेक 2 से 3 ग्राम पर डे से कम रखना है। उसके अलावा हमें डीप फ्राई आइटम्स अवॉइड करने हैं। अगर हमें पसंद भी है तो हम उसे सुपरफिशियल फ्राई या तवा फ्राई करके खा सकते हैं। एंड फिश इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, बट उसमें भी हमें जो जिसपे शेल होता है जैसे कि लॉबस्टर वगैरह, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑयल, जितना हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं उससे 50% कम में हम हमारा खाना बना सकते हैं, तो उसको भी कम करना है। एंड ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर दिस थिंग, कार्डियक कंडीशन, जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होता है। Okay. And doctor, lastly, I want to know that what things people should inculcate in their life to live a healthy life. See, we will discuss here about the Indians as we stay in India and we are Indians. So what we have seen ki the heart diseases in India occurs 10 years earlier as compared to Western population. So we have genetic factors also associated with it. Many of the Indians have heterozygous or homozygous familial hypercholesterolemia. तो वो एक चीज़ आ जाती है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमने इतना भी इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, कि जो चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो जो हमारे कंट्रोल में है, बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो हमें उसे कंट्रोल में करना चाहिए। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमें हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, कि हमारा जो खाना पीना है, जो पुराने जो हमारे फोर फादर्स थे वो जिस तरीके का खाना खाते थे कि इवनिंग में उनका डिनर हो जाता था सूरज डूबने से पहले, तो अगली डिनर शुड बी देयर। और आज के लोग क्या करते हैं कि मैं आऊँगा आराम से 11-12 बजे काम से खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अर्ली डिनर करना है। उसके बाद चलना बहुत ज़रूरी है, जॉग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, डेली 20 मिनट चलना ज़रूरी है। मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार करना बहुत ज़रूरी है, 3 से 5 बार। उसके अलावा जो मैंने बताया डाइटरी पैटर्न हमने चेंज कर लिया। उसके अलावा अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें कि आपको कोई भी तकलीफ हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल आता है,
तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद यू विल रिक्वायर सर्टन मेडिकेशंस फॉर दैट. सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर. सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें. लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है. इसके अलावा जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग कार्डियक डिजीजेस को बहुत बढ़ाता है, तो स्मोकिंग को भी हमें कम करना है. So these are the certain measures which we have to take to keep your cholesterol levels under control, to keep your CIBIL score under control, and to have a healthy heart. So, Doctor, that's it in our podcast. Thank you so much for joining us today and sharing such beneficial information with us. And I'm sure all the viewers who are watching this podcast will really change their life. Thank you so much. Thank you, Deepa. Thank you for this opportunity. So I like to tell to our viewers that keep your CIBIL score under control, stay fit, stay healthy,